Question number 14, HAHN Limited Group. Presume that today's date is 1st of October 2025. Your manager has had a meeting with Helga, the finance director of HAHN Limited, and her brother Jonas. Both HAHN Limited and Jonas are clients of your firm. ठीक है. तो इस पेपर को हम लोग ऐसे अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोग पेपर जेन्युइनली पेपर लिजिट दे रहे हैं. ठीक है. तो देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो सबसे पहले तो मेरा पता है स्ट्रेटेजी क्या होगी. जो बेसिक शिट एज क्वेश्चन है ना जिनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनको पहले अटेम्प्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो वैट और रिफंड ये लोग सबसे पहले अटेम्प्ट में कर दूंगा. ग्रुप रजिस्ट्रेशन फॉर पर्पसेस ऑफ वैट by reference to the specific information in my memorandum only, set out the matters which will need to be considered when deciding whether which of the companies should be included in the group registration. तो अपन ऐसा लिखेंगे for group registration purposes of value added tax, all the companies which have a percentage holding of more than 50%, those companies will come under the group registration for VAT purposes. So therefore, in the current scenario, as we can see that HAN Limited is the parent, Chad Fruit, Liz Limited, Stra Limited will come directly in the VAT registration group. Even Ruth Limited will come under the VAT registration group as Han Limited has an indirect interest of 50%. ठीक है. अभी इनमें से कोई ना कोई देखना यहाँ से फॉरेन कंपनी होगी. ठीक है ना. तो वो देख लेते हैं. A foreign company will not come under an overseas company will not come under the VAT registration group unless and until it has its operations which have been going on in UK. तो अभी in the current scenario अच्छा okay, all companies are resident trading companies. Nice. तो ये तो हो गया. ठीक है ना. तो ये खत्म बात. अब ये देखो वैट के उन्होंने यहाँ पे लाइन दी हुई है. द हैन लिमिटेड ग्रुप इज कंसिडरिंग रजिस्टरिंग एज अ वैट ग्रुप. Fruit Limited makes some exempt supplies such that it is a partially exempt company. The other six companies all make standard rated supplies only. Star Limited uses both annual accounting scheme and cash accounting scheme. On 1st of September 25, Chad Limited received a refund. तो ये तो वो refund वाला आंसर है. इसको जाने दो. ठीक है ना. When they come under the VAT registration group, it should be noted that all companies follow the same accounting scheme only. ठीक है ना. ये एक बात है. अभी फ्रूट लिमिटेड मिक्स एग्जाम सप्लाई वो सब तो ठीक है. For VAT registration purposes, one company should be selected who files the VAT returns for all the companies. This helps in saving the administrative costs. However, the administration complexities might increase as that one company has to collect and wait for the VAT the VAT information to be supplied by that company by some particular company. If one of the companies is late in filing the or is late in sending the VAT, then the entire VAT return might be filed late because of which penalties might come into play. ठीक है ना. ये अपन बोल सकते हैं. Prepare a summary of the actions we should take, any matters and which chat we should be aware of in respect of the refund. तो ये देखो एक refund आया हुआ है. I'm pretty sure वो HMRC की गलती होगी. HMRC, the company has not been able to identify any reason for the refund. ठीक है ना. So therefore, as we as tax auditors must identify the reason why this return has come from HMRC and why this refund and what this refund or which year this refund relates to. ठीक है ना. Which year this refund relates to. Um if we are not able to identify the reason for this refund, then we should, advise Chad that he should repay the amount to HMRC and disclose it to them that we are not able to identify the refund, and it might be a mistake on their part. However, if Chad Limited does not listen to our suggestion, then we should then we should resign from our engagement and inform the HMRC about our resignation, but should not give a reason for the same, as Chad Limited might be, as this money hiding or this refund which has been hidden by Chad Limited might be taken into consideration as a criminal prosecution or as a criminal proceedings. मतलब ये बहुत ही फार फेस्ट होता है, लेकिन ये लोग ने ये लाइन डाली हुई तो हम लोग भी डालेंगे. With next we should inform our tax advisor, or we should inform, sorry, our money laundering reporting officer about the same, as they can carry out their procedures for Chad Limited. ठीक है ना. ये अपन ने बोल दिया.
चेक करते इन्होंने वैट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या बोला हुआ है। वैट रिफंड ऑफ वैट, वैट यहाँ पे बोला है, हाँ ये देखो। Group registration could be made in respect of all the companies in Han Limited Group with the exception of Jolly Limited. Perfect, क्योंकि Jolly का खाली 30% था। ठीक है, because it is not controlled by, however, it is not necessary to include all qualifying companies within the group registration. Sales from one company in the VAT group to the other would be disregarded for the purpose of VAT. Therefore, there would be no requirement to charge VAT on the sales made by Han Limited and to Star Limited. Basically, इन्होंने बेनिफिट बताया हुआ है कि भाई वैट रजिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट है। Annual accounting scheme is not available when companies are registered as a group. Cash accounting scheme would be available, but only if the group taxable turnover is less than 13 lakh 50,000. These matters should be considered before deciding whether or not Star Limited should be included in the group registration. तो annual accounting scheme तो disregard ही कर दी ये लोग ने, लेकिन cash accounting scheme को फिर भी chance है। ठीक है ना। uh, Fair inclusion of freight limit in the group registration would result in group being partially exempt. This could increase the total input tax recovered by the company. For example, if the results of the group is as a wholly, if the results for the group as a whole satisfy partial exemption de minimis limits. Alternatively, the calculation of the recoverable input tax for the group as a whole could result in reduction in the total input tax recovered. Accordingly, further consideration should be required for deciding whether or not freight should be included in the group registration. इसलिए फ्रेट अपना पार्शियली एग्जेम्प्ट हो रहा था, इसके लिए वो लोग ने बोला है कि भाई क्योंकि वो पार्शियली एग्जेम्प्ट हो रहा है, अगर तुम उसको इंक्लूड करोगे तो फिर तुमको भी पार्शियली एग्जेम्प्ट चीजों को मतलब उसके ऊपर तुम वैट कलेक्ट नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। सो इट्स बेटर टू नॉट सिलेक्ट हिम इन द ग्रुप। फिर आता है refund of VAT. We should investigate, determine whether this is a valid reason for the refund. If we are unable to identify a valid reason, we would have to conclude that refund has been made as a result of error on part of the HMRC. मैंने mistake बोला था, they have said error, in which case it should be repaid immediately. We should inform chat that failing to return to the money in these circumstances may be a civil or a criminal offense. Criminal prosecution, criminal offense. We should also advise chat to inform HMRC of their error as soon as possible in order to minimize any interest and penalties which may otherwise become payable. If chat is unwilling to return the money, we would have to consider ceasing to act as tax advisors for the company. We would then have to notify the tax authorities that we no longer act for Chat Limited, although we would not provide them with any reason for our action. We should also consider whether or not it is necessary to make a report under the money laundering rules. चलो नाइस, ये अपन ने दोनों बराबर बोले। पाँच पाँच मार्क मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये 3 मार्क का है। चार्जेबल गेन ऑफ फ्लोट लिमिटेड, कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट विच वुड नीड टू बी स्पेंट ऑन एसेट्स क्वालिफाइंग फॉर रोल ओवर सच दैट अनरिलीव्ड गेन वुड बी फुल्ली कवर्ड बाय। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, ये मैं बोलता हूँ क्या, ये दोनों क्वेश्चन को साथ में ही करते हैं अटेम्प्ट। पहले ये वाला कर लेता हूँ, कैपिटल गेन्स टैक्स। An explanation with supporting calculations of the UK capital gains tax liability in respect of the disposals made by Jonas while is living in the country of Carinia. Your explanation should include the precise reasons for Jonas being regarded as a only temporarily non-UK resident and statement of when the tax was and will be payable. ठीक है। Background: Jonas has lived in the UK the whole of his life until he moved out with his wife in the country of Kenya on 1st of January 2022. Perfect. ये लाइन को अपन कॉपी पेस्ट करेंगे। He lived permanently in the UK on 30th of April. So he returned. Sorry. He returned to live permanently in the UK on 30th of April 2025. So therefore, any purchases and eventual sales made between 1st of January 2022 and 30th of April 2025 while he was living in the country of Kenya uh, will be regarded as not being taxed in the country of UK as the eventual purchase and sale took place in the country of Kenya itself. So therefore, in the current scenario, we can see that ये देखो, एंटीक बेड and car, they were purchased on 1st of May 2022 and they were sold on
on 1st of March 2025 and 1st of February 22 and 1st of April 2025. तो ये दोनों को ना बेसिकली उसने परचेज एंड सेल किया है while he was outside, मतलब वो living in the country of Kenya, and therefore this will not be chargeable to UK tax at all. ठीक है. ठीक है. Later on, we come down to quoted shares and painting. When we come down to quoted shares and painting, we will see that the date of purchase is 1st of October 20 and 1st of March 2020 respectively. This was before. That means Jonas had purchased these assets before he moved to the country of Kenya. That ठीक है ना? While he was in the UK and before moving to the country of Kenya, he sold these assets on 1st of December 2021. तो उसके लिए quoted shares का बता देते हैं. He sold the quoted shares before moving to the country of Kenya, and as he was domiciled in the UK and was a resident and domiciled in the UK, he was taxable on worldwide income, and therefore he will be taxable on quoted shares. ठीक है ना? तो ये तो हो गया. This is done. Because he sold his assets before moving to UK only. Sorry, before moving to Kenya only. Done. ये भी हो गया. Next, we come down to painting. When we come down to painting, we will see that he had purchased the asset on 1st of March 2020 while he was in the UK. However, he sold the asset on 1st of June 2024 while he was in the country of Kenya. That means this asset would not have been liable to tax if if Jonas had not returned back to UK within period of 5 years of making the transfer. Therefore, after selling the painting on 1st of June 2024, Jonas should not have arrived to UK until 1st of June 2029. However, as we can see that he arrived to UK on 30th of April 2025, that is within 5 years of making the sale outside the country of outside UK, he will now be taxed. He will now be considered as a temporary non-UK resident or temporary, हाँ ना वही ना, temporary non-UK resident, because of which he will now be taxable on this painting in the country of UK. हमको CGT नहीं बताना ना? नहीं बताना ही है. ओके, बताना ही है. सो देयरफॉर कोटेड से तो इसके ऊपर तो ये अपन बता सकते हैं एक्चुअली फटाफट इधर ही. डी पार्ट. First of December 21, particulars, amount, COA, chargeable gains, this minus this will be regarded as 18,900, and here it will be 16,000. So chargeable gains of इतने. ठीक है ना? बट सेल डेट देखना, ध्यान देना. परफेक्ट है. दिस इज फॉर quoted shares. हाँ, अभी सॉरी सॉरी, व्हेन विल ही बी टैक्सेबल वो अपन ने नहीं बोला. सो ही विल बी लायबल टू टैक्स ऑन द डेट ही लैंड्स इन द यूके, दैट इज 30th of April 2025 only. Painting sale date 1st of June 2024.
So therefore, in the current year, the chargeable gains is 21,000 less AEA of 3,000, assuming that he has not made any other transfers. The taxable gains would be itna, and therefore CGT would be okay. CGT मुझे इतना आ रहा है पेंटिंग के लिए, ठीक है ना, फॉर द टैक्स ईयर 24-25, सॉरी फॉर द टैक्स ईयर 25-26 ही कैलकुलेट किया है मैंने उसके लिए कैलकुलेट ही नहीं है कोटेड शेयर्स के लिए, ठीक है ना। एनएसबी हायर रेट टैक्स पेयर है, मैंने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है ना। I explained although for the non-resident while living in the country of Kenya, these disposals may still be subject to UK capital gains tax because he will be regarded as temporary non-UK resident. There is no capital gains tax in the country of there is no capital gains tax in the country of Kenya. पर ठीक है ना, ये तो एसेट्स उसने बाहर ही खरीदे हैं और मतलब बेचे हैं, वो तो ठीक है। एक्चुअली इवन ये देखो ना, कार कार जो है ना, कार ये अपन ऊपर बोल देंगे कि कार इज नॉट लायबल टू इज does not come under the chargeable gains, and that means there is no CGT required or being calculated for cars because ये exempt होते basically under the under the condition of movable chattels, ऐसा अपन बोल देंगे। एक्चुअली ना पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी एंटीक पेड इन्होंने ऐसा दिया ना कि वहां पे कोई टैक्स ही नहीं है, उन्होंने वो दिया है रे। देख अपना ना ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। एंटिक बेड भी मुझे लग रहा है परफेक्ट है क्योंकि देखो ना, उसने वहां पे खरीदा, उसने वहीं पे बेच दिया, तो ये दोनों उसके ही हो गए ना भाई, मतलब उधर उधर ही खरीदा उधर ही बेचा। हाउ डज इट मैटर कि भाई वहां पे टैक्स नहीं है, उसके कंट्री में टैक्स नहीं है, ये कैसे मैटर करता है भाई, है ना। मुझे तो यही यही लगता है यार, ये देखो अभी आंसर देख लेते हैं। ये देखो परफेक्ट है, 3,600 ही हमको मिला है। Jonas will be regarded as the only temporary non-UK resident while living in the country of Kenya because he was absent from the UK for less than 5 years. Having always lived in the UK prior to moving to Kenya, he was resident for at least 4 out of the 7 years immediately prior to the year of departure. ठीक है, ये लाइन भी डालनी होती है, मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि ये डाल भी डालनी होती है, that he was the UK resident for 4 out of the at least 7 years वाली। As a temporary non-UK resident, Jones will be subject to UK capital gains tax on the assets sold whilst he was temporarily overseas, which he owned at the date of his departure from UK. Accordingly, antique bed is excluded from these rules as it was both bought and sold in the absence. Perfect. Profit on the sale of the car is ignored as cars are exempt assets for the purpose of capital gains tax. तो ये लाइन भी उन्होंने डाली हुई है, लेकिन हमने परचेज और सेल भी देखो उधर ही किया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट्स फाइन, वो वाले तो अपन दोनों कंडीशंस यहाँ पे बताएंगे। शेयर्स दैट वेर सोल्ड जोनस, ठीक है, तो उन्होंने उसके ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स निकाला है, ठीक है, नॉट दैट उन्होंने नहीं निकाला है। दे हैव सेड कि भाई इसका भी निकाल लो, ठीक है ना। उन्होंने बोला इसके ऊपर भी निकाल लो, अगर तुम इसके ऊपर निकालोगे तो तुम्हारा जो एईए है वही पूरा का पूरा कवर अप कर लेगा, तो ये जीरो ही आएगा। मैंने वो नहीं निकाला क्योंकि ये करंट ईयर में आ ही नहीं रहा था। टेल डेट मैंने ये लिखे, बट नाउ इट विल बी द डेट ऑन विच ही अराइव्स इन द यूके, द यूके, ठीक है ना। तो ये हो गई ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी टैक्सेबल कैपिटल गेन्स टैक्स 3600, द गेन, ठीक है। अकॉर्डिंगली द टैक्स इज ड्यू ऑन 31 जनवरी 2027, ठीक है। ये लाइन फाइन फाइन फाइन, ठीक है। ये बेसिकली 10 मंथ्स बाद भरना होता है सीजीटी, ये उन्होंने बोला नहीं था ना लेकिन। हाँ अच्छा, हाँ, एंड स्टेटमेंट ऑफ व्हेन द टैक्स विल बी पेएबल, मैंने ये बोला ही नहीं कि ये कब पेएबल होगा। तो बेसिकली ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 25-26 में, तुम देखोगे तो 25-26 में आने के बाद हमको 10 महीना आगे जाना है। 10 महीने क्योंकि उस टैक्स ईयर के लिए, तो वो टैक्स ईयर है April 26 का, 5th of April 26, उससे हमें 10 महीने आगे जाना है, विच इज 31st of January 2027, कभी भी, ठीक है ना। टैक्स ईयर के 10 महीने आगे जाने का फॉर सीजीटी। तो मैंने देखो लास्ट के ये तीनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, 18 मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है, आउट ऑफ 40। ऑब्वियसली प्रोफेशनल के दो तीन यहाँ पे वो लोग ने ले लिए होंगे।
अब आते हैं ये दो बड़े क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलो, हमसे यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, पहले तो ए का फर्स्ट पार्ट, चार्जेबल गेन ऑफ फ्रेट लिमिटेड, कैलकुलेट द एडिशनल अमाउंट विच वुड नीड टू बी स्पेंट on assets qualifying for rollover relief such that the unrelieved gain would be fully covered by Freight Limited for Freight Limited's brought forward capital losses. Unrelieved gain would be covered by Freight Limited's brought forward capital losses. तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, तो पूरा सबसे पहले ग्रुप ग्रुप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तो ठीक है, हमने हमने देख लिया, राइट, ये वाला। तो ये सब चीजें आ रही है, ये आ रही है, सब आ रहा है। All of the companies are UK resident trading companies with an accounting reference date of 31st of March. All of the companies are registered for the purposes of value added tax with the exception of Chad Limited. All of the companies have been members of HAHN Limited Group for many years. HAHN Limited purchased Chad Limited. Okay, HAHN Limited had purchased Chad Limited from Xenon first of September 25. मतलब करंट ईयर में लिया हुआ है। हम्म। Prior to its disposal to Han Limited, Zeno Limited had owned Child Limited for and six other wholly owned subsidiaries for many years. पता है क्या बोल रहा हूँ। हम ना ये कॉर्पोरेशन टैक्स का सम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये चीज कब आने वाली है, मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ। अपर लिमिट्स, लोअर लिमिट्स, ठीक है, 2,50,000, 50,000, ठीक है। अभी कितने कंपनीज है, सबसे पहली बात तो ये मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 एसोसिएट्स, हाँ 6 एसोसिएट्स, एसोसिएट्स के नाम पे मैं 50% का देखता हूँ। तो दिस मेरे को ये आती है मेरे अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स, नाइसली डन। एक सेकंड, चलो भाई, अभी ये हो गया मेरे रिस्ट्रिक्शन ऑफ अपर लिमिट्स। ये तो ठीक है, लोगों को समझ जाएगा। अब आता है इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस रिस्ट्रिक्शन। देखो, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन में पता है कैसे रहता है, नॉर्मल लिमिट विच इज 1,50,000, सॉरी 15 lakhs, माई बैड, 15 lakhs, नंबर ऑफ एसोसिएट्स, बट नंबर ऑफ एसोसिएट ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है ना। पिछले साल कितने एसोसिएट्स थे, हम वो डालते हैं यहाँ पे। पिछले साल देखो मैंने, करंट में 25-26 है ना। हम्म। हम्म। तो मैं पिछले साल तक मैंने चैट को अभी परचेस किया है, तो पिछले साल तक मेरे खाली 5 ही एसोसिएट्स थे। सो रिस्ट्रिक्टेड इंस्टॉलमेंट ऑप्शन, रिस्ट्रिक्टेड इंस्टॉलमेंट लिमिट, एक्चुअली सॉरी, इंस्टॉलमेंट लिमिट। मैंने इधर भी ऐसे क्यों लिखा, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन रिस्ट्रिक्शन, इंस्टॉलमेंट रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही है वो, ठीक है ना। चलो ये हो गया। इसके बाद आता है, इसके बाद एसोसिएट्स हमें देखने थे ना। जो जॉली लिमिटेड इज नॉट अ कंसोर्टियम कंपनी, बजटेड रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 26 आर, ये सब मुझे दिए हुए हैं। The budget results include 94,000 of sales made by hand limited to तो ये सब मुझे कुछ दिया है, ठीक है ना। Budget results include 94,000 of sales made by hand to straw. The arm's length price of the sales would be 1,04,000। तो मुझे
10,000 के लिए एडजस्ट करना है मुझे, स्ट्रा लिमिटेड में 10,000 बढ़ाना है, सॉरी, मुझे सेल्स मेड बाय हैन है ना, हाँ सॉरी, तो मुझे हैन में 10,000 रुपए बढ़ाने हैं। बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ द वैट, नो एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड, पर परफेक्ट, नो एडजस्टमेंट मतलब बढ़ानी ही है। एंड हैन लिमिटेड ग्रुप इज अ लार्ज ग्रुप फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, ठीक है। फ्रिट लिमिटेड chargeable gain will be in respect of the sale of the building to an unconnected party। हाँ मुझे तो यही निकालना है ना, तो सेल्स made to an unconnected party, वो कितना है मेरा सेल unconnected party, 1,25,000। एंड सो फॉर दी, मैं फ्रिट लिमिटेड के लिए कर रहा हूँ ना ये सब, हाँ फ्रिट लिमिटेड के लिए कर रहा हूँ। एंड सो द फॉर द रोल ओवर रिलीफ, the all of the proceeds should have been reinvested. If these are not reinvested, then the amount of proceeds, मैंने बहुत ज्यादा फालतू लिखा है बट ठीक है, not reinvested will be chargeable to tax immediately। Done। 1,25,000 के हो गए सेल्स प्रोसीड्स, एसेट्स परचेज, देखो अभी ये मैं हूँ, ठीक है, मुझे ट्रेडिंग लॉस, ओके व्हाट द फक, इसको भी ब्रॉट फॉरवर्ड है, मैं इसको दे सकता हूँ, सब सेट ऑफ तो हो सकता है वैसे। तो आई थिंक मुझे बस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को ही देखना है इसके, कि अगर मैं सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को कंसिडर करके चलूं आगे, एंड ऑफ कोर्स द एसेट्स व्हिच आर रीइन्वेस्टेड, तो क्या होगा, तो देखो एसेट्स मैंने कौन कौन से रीइन्वेस्ट किए, 14 6 10, लेकिन ये सारे कंपनीज का दिया हुआ है। मेरे ग्रुप में कौन से आते हैं, गेम्स ग्रुप में मेरे कौन कौन से कंपनीज आते हैं, मेरे गेम्स ग्रुप में आते हैं हैन, चैट, फ्रेड, जॉली नहीं आता, जॉली का कुछ भी नहीं, ओके ठीक है, जॉली का कुछ भी नहीं था, लीजे लिमिटेड आता है, रुत नहीं आता बिकॉज लीजे डज नॉट ओन रुत में 75%, वरना इनडायरेक्टली 50 को, इनडायरेक्टली 50% तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली भी 75% ओन करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, तो फिर रुत भी नहीं आता, जॉली भी नहीं आता, तो बचा स्ट्रा, तो एक ही मिनट, ये पूरा ही नहीं आता, फिर बचा फ्रूट का और स्ट्रा का जो इन्होंने री इन्वेस्ट किए हैं। मैं ये 48 नहीं कंसिडर कर सकता, ऐसा उन्होंने बोला है, सो लेट्स, ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दैट। So reinvested in assets would be 14,000 ही है ना वो, हम्म, प्लस 10,000 लेस कैपिटल लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड, यस ब्रॉड फॉरवर्ड 31,000 का, बचता है खाली 70,000 विच इज नाउ assets worth of 70,000 should be purchased in order to claim the rollover relief। काम ही नहीं था उसका कुछ, तो आई थिंक यही होना चाहिए।
70,000. Relieving the trading loss of Freight Limited, prepare explanations together with supporting calculations to show how the trading loss of Freight Limited should be allocated between the companies in the group. The group's priority is its cash flow position and the need to minimize the corporation tax payable by installments. When preparing these calculations, you should assume that the whole of the chargeable gain of Freight Limited will be relieved by rollover relief. Prepare a schedule setting out the amounts of corporation tax payable by hand. ठीक है. In respect of the year ending 31st of March 26 together with related payment dates. पेमेंट डेट तो सबके लिए सेम ही होगी बिकॉज सबके लिए करस्पॉन्डिंग ईयर एंडिंग ही है तो 9 months and 1 day. So that is 1st of January 2027 for everyone. नहीं, कुछ कुछ कंपनीज के लिए इंस्टॉलमेंट्स में भी है ना. अरे हाँ, जिनके जिनके प्रॉफिट्स बेसिकली 3 लाख से ज्यादा होंगे उनके लिए. अच्छा ओके, तो मुझे इस चीज को नीचे लिखना है बेसिकली. ओके, तो ये एम्प्टी स्पेस थोड़ी सी रह जाती है. सबसे मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना है, लेकिन मैं क्या करता हूँ सबसे पहले उन्हीं कंपनीज को लिखता हूँ जो मिसाइल मेरे ग्रुप में आती है ना. पर्टिकुलर्स हैंड लिमिटेड, थोड़ा सा और कंट्रोल एक्स करके नीचे. चैड लिमिटेड, फ्रिट लिमिटेड, ब्लिस लिमिटेड, स्प्रा लिमिटेड, इतने ही मेरे ग्रुप में आते हैं. पांच कैसे, पहले मैं छह छह क्यों लिए थे. हाँ बराबर, एक कंपनी में इनडायरेक्टली, सॉरी मैंने वो एसोसिएट्स में 6 लिए थे, बराबर है. ग्रुप में रुत नहीं आता. राइट 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 राइट. अभी एक एक करके सारी चीजों को डालते हैं. टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रॉफिट्स 280, 675, 4 लाख 10,000. एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, 4 लाख इसमें नहीं है ही नहीं. लिस्ले में कितना है? 375. फ्रिट में तो लॉस है. एंड स्ट्रा में देख लेते हैं. स्ट्रा में 58 ही है, लेकिन उनके कुछ लॉसेस भी हैं. ट्रेडिंग लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड. इसको मैं actually नीचे लिख देता हूँ. पहले मैं क्या करता हूँ, वो इसका एडजस्टमेंट डाल देता हूँ. ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट. 10 इसको मिल रहा था ना, 10,000 ही था ना. हाँ, 10,000 का हमने नहीं नहीं अकाउंट किया था. कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये सब मैंने एक्चुअली चार्जेबल गेन्स के सामने कर दिया होगा ना पूरा. ये तो हो गया ना अभी. कि नहीं. हम्म. When preparing these calculations, you should assume that the whole of the chargeable gains rate limited will be relieved by rollover relief. ठीक है, तो इसको कुछ नहीं कंसिडर करके जाना है. ट्रेन लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड. अब मुझे फ्रेट लिमिटेड के लिए लॉसेस करने, मतलब वो करना है ना, सेट ऑफ लॉस मेमोरेंडम. क्या है लॉस मेमोरेंडम? टोटल लॉसेस वुड बी 540
लेस उसमें से मैं क्या क्या करूंगा, देखो मुझे, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई भी कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पे ना करे, और इंस्टॉलमेंट का लिमिट है 3 लाख का। नाउ ऐसे इधर लिख देता हूँ। नाउ the losses should be set off with the companies in such a way that none of the companies would be liable to pay the corporation tax in installments. In the current scenario, before any losses are transferred, it seems that Shad Limited and Lisse Limited are the two companies that are liable, एंड इसको कॉपी पेस्ट करके वापस लिखेंगे कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। तो सबसे पहले हमें चैड लिमिटेड को कम करना है, लेकिन चैड को हमने इसी साल एक्वायर किया था, चैड लिमिटेड लॉसेस रिस्ट्रिक्शन। देखो हमने एक्चुअली इसको इसी साल एक्वायर किया था, तो कॉपी पेस्ट करेंगे इस लाइन को। therefore losses should be set off for chad in such a way that it corresponds with its accounting period and is the lower of the profits made by chad and is the lower of the proportionate of the loss is set off to the lower of the proportionate of the made by the child and the proportionate of the losses made by Spirit Limited। मैंने चैड ही लिखा है सिर्फ वहां पे, चैड की तरह लिमिटेड lower of profits of Freight Limited, sorry, profits of Chad Limited and Control C, Control V of losses of Freight Limited। तो अभी प्रॉफिट कितने बनाए चैड ने प्रॉफिट्स बनाए देखो 675। मैंने लॉसेस कितने, मैंने टोटल लॉसेस बनाए 540, तो मोस्टली यही होगा लोअर ऑफ का 540। हैन परचेज चैड ऑन 1 September 25, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 7 महीना इज इक्वल टू 7/12 दिस इनटू दिस लोअर ऑफ, तो लोअर ऑफ में 315 ही जीतता है, तो देयरफॉर लेस losses surrendered to Chad Limited तो वो आता है दिस माइनस दिस 225 का losses surrendered losses surrendering 315। अब मुझे नेक्स्ट किसको करना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरा प्रायोरिटी में लीजे होना चाहिए। लीजे का तो मैं सब दे सकता हूँ, है ना। हम्म, लीजे का तो मैं सभी का सभी दे सकता हूँ ना।
डन। क्योंकि देखो इसको तो अभी, हाँ मतलब अभी, एक मिनट, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, फिट तो गेम, सॉरी स्ट्रा तो गेम में ही नहीं आता, बिकॉज स्ट्रा का को खुद ही डायरेक्टली तो उसका 10,000 पे सेव हो रहा है भाई उसका, मतलब उसका 10,000 पे टैक्स पेबल है, ठीक है ना, तो उसका कम ही है। अगर मैं बाकी के सारे लॉसेस उल्टा इसको अगर दे दूंगा ना 225 का, तो इसका भला हो जाएगा, है ना। तो लॉसेस सरेंडर्ड टू, कौन है ये, लिस्ट लिमिटेड, तो वो होता है 225 का। हाँ अभी एक्सप्लेनेशन भी देना है, तो हम एक्सप्लेनेशन में ये सब लिखेंगे कि वो ग्रुप रिलीफ ग्रुप में आते हैं, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब लिखेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तो अभी आता है कॉरपोरेशन टैक्स पेएबल, ठीक है ना। कॉरपोरेशन टैक्स पेएबल वुड बी, अभी देखो सारी कंपनीज को 25% पे भरना ही पड़ रहा है ना, 0.25 0.25 0.25 0.25 सबको, लेकिन खाली स्ट्रा को नहीं भरना पड़ रहा। हाउएवर स्ट्रा लिमिटेड इज कमिंग बिटवीन द ऑगमेंटेड और ये मतलब वो प्रॉफिट्स के बीच में, तो उसका खाली थोड़ा सीन अच्छा है। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेशन फॉर स्ट्रा लिमिटेड, तो वो कैसा हो रहा है, अपर लिमिट ऑगमेंटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय 1000, तो ये आता है कुछ तो standard fraction, which is 3 by 200, and then this into this. Corporation tax would be इस चीज के ऊपर 0.25, corporation tax would be this minus this, तो ये आता है 0. ठीक है ना, तो ये आ गया मेरे को वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर 3। नाइस, तो देयरफॉर अभी किन किन लोगों को बेसिकली अभी ये पेबल आएगा, अभी खाली चैट को इंस्टॉलमेंट्स में पे करने को आएगा, तो फिर ड्यू डेट्स बाकी सबकी जो होगी वो तो सेम ही होगी, 01/01/2027 ना, सब बाकी सबके तो सेम ही है भाई, पेमेंट्स की 9 दिन 1 महीना। इसका अभी आता है इंस्टॉलमेंट्स में पे करने को, दी इंस्टॉलमेंट payments will begin from the seventh month of the accounting year, will be on the 14th day, and will be further 3 months from that. That is 10th month, 13th month, and 16th month from the accounting year end. चलो भाई, आई थिंक ये हो गया। अकाउंटिंग ईयर एंड की अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट, सॉरी 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 सॉरी, अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम द अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग है, आई थिंक ये, सॉरी सॉरी सॉरी, अकाउंटिंग ईयर स्टार्टिंग है मुझे लगता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मुझे अजम्पशन बेसिस पे करना होता है, एज फार एज आई रिमेम्बर, ये ऐसा ही होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। इंट्रा ग्रुप सेल्स है, ये देखो, ये हमें बताना था, थ्योरी हमने लिखी बोली नहीं है, लेकिन लिखनी है, ठीक है ना।
Rational trading loss in order to maximize the benefit of cash flow for it limited trading loss should be surrendered to companies paying corporation tax by quarterly installments. Perfect. Firstly, to any companies whose profits can be reduced to the payment by installment threshold such that installments will no longer be required. Then to any other company which profits in excess of the payment by installment threshold such that installments will be reduced. Finally, to any other company. Perfect. ये हमने बोल दिया. Threshold for chat limited is 1 lakh. ये क्या है? ओके, इन्होंने चैट लिमिटेड के लिए भी निकाला है कि बेसिकली चैट लिमिटेड के लिए कितना थ्रेशोल्ड है. बिकॉज सी हमारा इंस्टॉलमेंट थ्रेशोल्ड में हमने 5 नंबर ऑफ कंपनीज को लिया है, बराबर है. लेकिन चैट के केस में वैसा नहीं है. चैट इंस्टॉलमेंट थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड के अंदर एक्चुअली 8 कंपनीज आती है, बिकॉज वो पहले एक अदर कंपनी का पार्ट था ना भाई. वो पहले जीनो में किधर तो था. ये देखो, तो उसको वैसे भी हमारे ग्रुप में मैंने तो ऐसे ही बोला था कि उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे है, क्योंकि उसका 3 लाख 60 आ रहा है विच इज मोर देन 3 लाख. इन्होंने अपना 8 से डिवाइड करके 1 लाख 87,500 लेके आया, तो आंसर तो सेम ही है. लेकिन अगर ये गलती से भी 3 होता या 4 था तो फिर आंसर डिफरेंट हो सकता था. ठीक है ना. तो ये अपनी एक्चुअली गलती है ये वाली कि हमने ये देखा नहीं. क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला था, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स इज आप प्रीवियस ईयर में कहाँ पे थे और आपके प्रीवियस ईयर में कितने कंपनीज थे. प्रीवियस ईयर में वो एक्चुअली जेनो जेनो लिमिटेड में था, जहाँ पे 6 होली ओन्ड सब्सिडरीज थे और वो दोनों चैट और जेनो ऐसा. तो उन्होंने कैसे किया है अपने वो लॉसेस को, पहले 5 लाख 40 का लॉस था चैट को पहले, एंड देन लीजा को, एंड देन बाकी का हैन लिमिटेड को दे दिया वो लोग ने. क्यों भाई ऐसा? एक मिनट है, वो चेक कर लेते हैं. इसको ठीक है, इसको ये भी ठीक है. Trading profits of 48,000 transfers. Star Limited must assume set off with their own trading losses brought forward. Assuming ठीक है. John Limited is not an effective 75 Jolly Limited is not a 75% मतलब वो सब्सिडरी, वो अपन पहले ही बता देंगे थियोरी में, वो तो ठीक है. इसको 35. सी इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू ना, तो एक मिनट, रुत क्यों आ रहा है गेम में? रुत नहीं आना चाहिए. रुत शुड नॉट बी देयर. ठीक है ना, ये रुत का कैलकुलेशन नहीं मुझे लगता आना चाहिए. स्टार लिमिटेड को इन्होंने पूरा ही क्यों माइनस कर दिया? 10,000. स्टार लिमिटेड मस्ट अज्यूम सेट ऑफ इट्स ओन ट्रेडिंग लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड. ठीक है, बिफोर क्लेमिंग. ठीक है. दिस विल रिड्यूस टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट्स टू 0. ओके. ओ ओके ओके ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट वो लोग ने किया है यहाँ पे. ओ ओ माय बैड. दे हैव डन हियर द ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट, कि यहाँ पे भी हम लोग को 10,000 माइनस करना है. अगर मैंने यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी वो 10,000 को माइनस, तो फिर ये जीरो आएगा. तो फिर इसका कोई कैपिटल गेन्स टैक्स पेबल ही नहीं आएगा. मुझे नहीं लगता मतलब गुरुद के लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने वो गलती की है मतलब गुरुद की, वो जाने दो. एंड सेकेंडली, ये जो इन्होंने लॉसेस एंड में जाके वो हैन को दे दिया ना, इसमें कोई, इसमें ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है. ठीक है ना. हम वो चीज लीजे को भी दे सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली फेयर टू गिव इट टू लीजे ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने देखो क्या बोला है कि पहले ऐसी कंपनी को दे दो जिसका हम इंस्टॉलमेंट्स में दे दे पे कर सकते हैं. देन एनी अदर कंपनी विथ प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ पेमेंट बाय थ्रेशोल्ड. ठीक है. एंड उसके बाद फाइनली टू एनी अदर कंपनी. तो ठीक है ना भाई, मेरी एनी अदर कंपनी लीजे ही है. मैंने उसको लॉसेस देने के बाद उसको उस मतलब उसको पहले मैंने 75,000 तक बोला था कि उसको हम कम टैक्स मतलब यहाँ तक लेके आएंगे, और फिर उसके बाद बाकी बचे हुए लॉस भी हम उसी को दे देते हैं. ठीक है ना. तो ये फाइन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये उन्होंने क्या किया, पेमेंट शेड्यूल उन्होंने वो लोग ने निकाला हुआ है. तो ये देखो पेमेंट शेड्यूल. उन्होंने सबसे पहले तो कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब ऐसा इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का उन्होंने निकाला है कि हम कितना पे करेंगे. दे हैव सेड 90,000 प्लस 80,000 दे हैव डन. प्लस 80,000 आई थिंक दैट मस्ट बी फ्रॉम द अदर सेल्स. पता है, ये जो है ना, ये हमारे पास आने के बाद की बात है. भैया ये जो 80,000 है ना, व्हेन ही वाज आउटसाइड द कंपनी वैसा था ये. ठीक है ना. तो इसको इन्होंने देखो 7 मंथ इन द, क्या बोलते हैं वो, इन द अकाउंटिंग ईयर. तो
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7th मंथ इन द ऐसा है ये। तो ये अपन ने बराबर बोला था पेमेंट्स करना 9 डे, हाँ बाकी कंपनीज को 9 डे 1 मंथ के अंदर ही करना है। तो देखो 1 जनवरी 2027, अभी अपर लिमिट फॉर द कंपनी एक्सेप्ट चार्ज ठीक है, पर चार्ज इज लिमिटेडली लोअर, चार्ज इज स्टिल एसोसिएटेड बराबर है। हैंड लिमिटेड एंड चार्ज एंड लीव will all have will all have profits in excess, that's fine। इन्होंने यहाँ पे +80,000, एक्चुअली मैं फिगर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि 80,000 को मिला कहाँ से। बोलो एक्चुअली वो रुत का ले रहे हैं, रुत का, दे आर कंसिडरिंग रुत का लॉस, बट अगेन रुत इज नॉट कमिंग इन द गेम ओनली। ठीक है, ये चैट का नहीं है, सॉरी, ये 80,000 इज नॉट चैट, दिस 80,000 90, ये चैट का 90,000 नहीं है, ये जो 80,000 है ना ये अपने वो रुत का है। बट रुत का कैसा है, वो अपने ग्रुप में आ ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने उसका यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने अपने ग्रुप कंपनीज का ही मांगा हुआ था। सो आई थिंक इट्स फाइन। ये बहुत सारे क्या बोलते हैं ग्रे एरियाज है एक्चुअली इस पूरे सम में, कि आपने हैन को लास्ट में जाके क्यों दे दिया, आप चैट को आप पूरा का पूरा मतलब वो लीजे को भी दे सकते थे। फिर आपने वो रुत का कलेक्शन किया ही क्यों है, अगर आपने बेसिकली अगर ग्रुप कंपनीज का मांगा हुआ है वगैरह ऐसा। ठीक है ना। बट आई फील ओवर एंड ऑल, अगर ये नॉ अगर ये मार्क्स 19 मार्क्स के लिए आया हुआ है, इसमें से आराम से 14 तो मिलनी ही चाहिए, बिकॉज हमने बाकी सारे कैलकुलेशंस बराबर किए हैं, हमने इंस्टॉलमेंट्स का डेट्स बराबर बोले हैं। ठीक है ना। हमने इवन ये ट्रांसफर प्राइसिंग का एडजस्टमेंट किया है, सो आई थिंक इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए।